اہم خبر مہنگائی سے دوچار عوام کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام جنوبی پنجاب میں مفت آٹے کی فراہمی جاری مرد و خواتین کے لیے الگ الگ کاؤنٹرز پوائنٹس پر مثالی انتظامات رش کے پیش نظر پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ انتظامی افسروں کے ہنگامی دورے آٹا تقسیم کے عمل کی مانیٹرنگ آٹا حاصل کرنے والے شہریوں کی حکومت کو دعائیں مہنگائی سے دوچار عوام کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام جنوبی پنجاب میں مفت آٹے کی فراہمی جاری مرد و خواتین کے لیے الگ الگ کاؤنٹر پوائنٹس پر مثالی انتظامات رش کے پیش نظر پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ انتظامی افسروں کے ہنگامی دورے آٹا تقسیم کے عمل کی مانیٹرنگ جاری ہے آٹا حاصل کرنے والے شہریوں کی حکومت کو دعائیں سرگودا میں مستحقین افراد میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے مزید جانتے ہیں شیخ عثمان سے آج بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت کے اوپر سرگودا کے اندر جو ہے آٹا فری جو تقسیم ہو رہا ہے اس کے پوائنٹس جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں اس وقت جو ہے سرگودا شہر میں تقریباً 10 پوائنٹ جو بنا دیے ہیں جو پہلے 3 پوائنٹ تھے وزیر اعظم کے سرگودا دورہ کے بعد جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر جو عوام کی پریشانی کو پیش نظر اس پوائنٹ کو بڑھا دیے گئے ہیں شہری جو ہے اس سے بہت مطمئن ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ لمبی قطاروں میں لگنے سے ہمیں بچ گئے ہیں اور بیٹھ کے ایک آسانی سے ہمیں آٹا جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ چند یہاں پر موجود ہے خواتین جو آٹا لینے آئی ہیں سب زیادہ بتائیے گا جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مطلب کہ آسانی سے آٹا مل رہا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں شناختی کارڈ سے آٹا دے رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر آٹا جو ہے بہت اچھے طرح سے آسانی سے دستیاب ہو رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں نہ تو لمبی قطاروں میں بیٹھایا جاتا ہے خواتین کو ایک باعزت طریقے کے ساتھ جو ہے حکومت کی خصوصی ہدایت کے اوپر اندر چیئرز لگائے گئے ہیں ہال کے اندر شادی ہال کے اندر یہاں پر بنائے گئے ہوئے ہیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں جہاں پر خواتین اندر آ رہی ہیں اور کرسیوں پہ بیٹھ کے آرام سے آسانی سے جو آٹا جو ہے انہیں فراہم کیا جا رہا ہے اگر ہم سرگودا کی بات کریں تو ضلع بھر کے اندر جو ہے 4 پوائنٹ ایسے بنائے گئے ہیں سرگودا میں جہاں پر 24 گھنٹے عوام کی سہولت کے لیے انہیں فری آٹا جو ہے وہ دستیاب ہوگا اس کے علاوہ 6 پوائنٹ دیگر بنائے گئے ہیں جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے وہاں پر آٹا دستیاب ہوگا اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مسائل آتا ہے کہ ایپ جو ہے ان میں نہیں آ رہی تو وہ بجائے ادھر جو بحث تکرار کرنے کے وہ جو بینظیر انکم سپورٹ ہے وہاں پر رابطہ کرے تو ان کا جو بھی مسائل ہے وہ حل ہو جائیں گے لیکن شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ اقدامات انتہائی احسن اقدام ہے اس طرح کے اقدامات دوست اقدامات ہیں اور عوام کی بہت شکریہ شیخ عثمان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اب رخ کرتے ہیں فورٹ عباس کا حکومت پنجاب کا خصوصی ریلیف پیکیج فورٹ عباس میں بھی مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ منصفانہ طریقے سے جاری اے سی ارسلان بشیر کا مفت آٹا پوائنٹ کا دورہ اے سی نے مفت آٹا پوائنٹ پر تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں نعمان سعید سے ہاں جی بالکل ایسی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی خصوصی ہدایت پر جو ہے پنجاب بھر کی طرح جو ہے فورٹ عباس میں بھی مفت آٹا فراہمی کا جو سلسلہ جو ہے منصفانہ طریقے سے جاری ہے اس وقت جو اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس جو ہے ارسلان بشیر نے جو ہے اس آٹا پوائنٹ کا وزٹ کیا ہے مزید سے جانتے ہیں سر بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے جو انتظامات کو کیسا پایا ہے مزید عوام کو جو ہے ریلیف دینے کے لیے جو ہے انتظامیہ کس طرح متحرک جی بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر رمضان میں جو یہ فری آٹا اسکیم شروع کی گئی ہے اس میں پاکستان کے پہلے یہ اسکیم چل رہی تھی کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان میں سے ہر فیملی کے سربراہ کو 3 بیگ آٹے کے ملنے تھے تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان اب گورنمنٹ نے ایک اور مزید احسن اقدام پبلک کے لیے یہ کیا ہے کہ ہر کسی کو ایک تھیلا دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے تو یہ بڑا احسن اقدام ہے اور اسی وجہ سے آج آپ کو تھوڑا رش بھی زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارا کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا اس میں یہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں جیسے ہی آج رش بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مزید روز بھی ایڈ کروائی ہیں مزید ہم اپنی لاگ ان آئی ڈیز بھی بنوا رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے جتنا ہم میکسیمم اپنے لوگوں کو سپورٹ کر سکیں اور جتنی جلدی ان کو آٹا دیا جا سکے باعزت طریقے سے ہم نے باوجود رمضان کے ضعیف اور نادار لوگوں کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا ہے بیٹھنے کے لیے چیئرز کا بھی انتظام ہے میڈیکل ایمرجنسی کاؤنٹر بھی لگایا ہے تو یہ سارا کچھ گورنمنٹ کی ڈائریکشن پہ اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ کیا جا رہا ہے ہاں جی بالکل جو اسسٹنٹ کمشنر کا یہی کہنا تھا کہ شہری بھی جو ہے وہ صبر سے کام لے انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے اس ایسے اقدام کا خیر مقدم کیا اور یہاں پر تمام تر انتظامات بھی جو ہے وہ مکمل کیے
हुकूमत पंजाब का आवाम को रिलीफ देने का अज़म। फ्री आटा सेल पॉइंट पर बदनज़मी की शिकायत का अज़ाला कर दिया गया। मुफ्त आटा सेल पॉइंट पर इजाफी काउंटर कायम कर दिए गए। आटे का कोटा बढ़ाकर 4000 बैग कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं शेख वसीम अली से। हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री आटा सेल पॉइंट जो है यजमान स्टेडियम में कायम है, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर 4000 बैग जो है जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको दिए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर फरमाइएगा, कैसे इंतजामात हैं और कितने बैग डेली आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि मेरिट पे जा रहा है, अमला कैसे काम कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुफ्त आटा स्कीम के लिए हमारे यहाँ सिटी स्टेडियम में तकरीबन 4000 बैग्स डेली की बुनियाद पे आते हैं। ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अलग-अलग काउंटर हैं और 8070 पे जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद हम फ़ी ख़ानदान एक थैला जो है वो मुफ्त तकसीम होता है और उसने तकरीबन 3 थैले पूरे 25 शबान से लेकर 25 रमज़ान तक यहाँ पे इसका इनाकाद होगा और तकरीबन सुबह हम 6:30 बजे से लेकर रात गए तक ये आटा अवेलेबल है। अभी भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन हमारा 2000 बैग पड़ा है। बिल्कुल जी, 4000 बैग डेली दिए जा रहे हैं और जितने फ्री आटा बैग की तकसीम का सिलसिला जारी डेली जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख वसीम अली आपका हमें अपडेट करने के लिए। और बहावल नगर से खबर देंगे आपको। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। सतलुज पार्क और खालिद मकबूल पार्क में आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। 2,74,526 आटे के मुफ्त थैले तकसीम किए जा चुके हैं। मुफ्त आटे की तकसीम बगैर किसी तातिल की जारी है। डिप्टी कमिश्नर मुफ्त आटे की तकसीम का मकसद मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करना है। डीपीओ का ऐसा कहना है कि बहावल नगर में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। केरोड़ पक्का में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा तकसीम का अमल जारी। एसी कलीम यूसुफ और डीएसपी मोहम्मद रिजवान खान आटा पॉइंट्स पहुंच गए। शहर के मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। एसी ने शहरियों से आटा तकसीम बारे दरियाफ्त किया। मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी पे। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटा तकसीम का अमल जारी है। इस वक्त भी ताज महल जो यहाँ पर मैरिज हाल है वहाँ पर आटा मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ जो है डीएसपी मोहम्मद रिजवान खान के हमरा मौके पर मौजूद हैं और इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ से। जी सर, क्या कहेंगे, आटा तकसीम का अमल जारी है, अब तक कितना तहसील भर में आटा तकसीम किया जा चुका है? जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये आटे की जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है उसका 9वां दिन है और अब तक तहसील करोड़ पक्का में तकरीबन 65,000 के करीब बैग जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। 5 सेल पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स तहसील करोड़ पक्का में। 2 जो हैं वो सिटी में हैं, 3 हमारे रूरल एरियाज़ में हैं। तो पहले 1-1 बैग दिया जा रहा था, जिनके अब बाकी 2 बैग रह गए हैं। आज से उनका पहला दिन है तो 2 बैग भी स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी जिनके 2 बैग रहते हैं वो इकट्ठे उनको 2 बैग दिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हमारा 9 से 10,000 ऑलरेडी बैग आ रहा था, लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट की है डीएफसी साहब से कि कल से कोटा जो है वो डबल कर दिया जाए ताकि जो 2 बैग की वजह से जल्दी ख़त्म होता है वो हम सारे लोगों को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। जी हमारे साथ डीएसपी मोहम्मद रिजवान खान भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, रश बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास जो दस्तियाब नफरी है उसको हमने यहाँ पर डिप्यूट किया हुआ है। लेडीज़ स्टाफ हमारा जो है वो ड्यूटी कर रहा है। इसके अलावा इस साहब का जो स्टाफ है वो हमारे साथ ड्यूटी कर रहा है। तो इंशाल्लाह पहले भी ये पीसफुल रहा है और इंशाल्लाह अभी भी हम पीसफुली वो करेंगे। मैं और एसी साहब जो है वो हम गाय बगाए जो है ना तमाम पॉइंट्स का चक्कर लगा रहे हैं ताकि जो है ना आटे की जो तकसीम है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उसको शफाफ तरीके से उस तकसीम को जो है हम यकीनी बना सकें। तो इंशाल्लाह पहले भी ये पीसफुली चलता रहा है सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम होने की वजह से और इंशाल्लाह अब भी इसको हम इंशाल्लाह पीसफुली इसको इस्तेमाल। जी तहसील भर में 5 जो है यहाँ पर मुफ्त आटा जो पॉइंट एंड सेंटर हैं वो बनाए गए हैं और इंतजामिया जो है मौके पर जाकर इंतजाम का जायजा भी ले रही है। अब तक तहसील भर में 60,000। आशिक हुसैन कुरैशी आपका हमें अपडेट करने के लिए।
सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए इंतज़ामिया पुरज़म। कोटहद्दू में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिदायत पर दो थैले मुहैया किए जाने लगे। मज़ीद जानते हैं शफकत मौलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हूँ। आज जो फ्री आटा की जो दूसरी किस्त वो चालू हो चुकी है। किस लोगों के एक थैला और किन के दो आ रहे हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अस्कर इकबाल लगारी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कुछ ऐप एरर भी आ रहे हैं। मजीद इन्होंने आज यहाँ पे लोगों को गाइडेंस भी दी और अनाउंसमेंट भी की। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। जी सर, इस हवाले से बताइएगा। जी शुक्रिया। एक्चुअली तो ये गवर्नमेंट की पहले पॉलिसी थी कि एक बैग हमने देना है, फिर एक बैग हफ्ते बाद, इस तरह 3 इंस्टॉलमेंट्स पे हमने देने थे जो फ्री आटा है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने, जो हमारे जो सीएम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, लोगों की मुश्किलात को देखते हुए, चूँकि रमज़ान शरीफ है, ये लोग अपने रोज़े रख सकें, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि एक ही इन सिंगल गो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसमें हम दोनों बैग एक साथ ही दे दें। तो उसमें एप्लीकेशन जो ऐप है उसमें थोड़ा कोई एरर आया सुबह 10, 11, 12 बजे तक। बाज़ औक़ात जब लोड पड़ जाता है तो एरर आते रहते हैं। तो हम उसमें जिन लोगों को एक बैग मिल चुका था हम उनको 2 बैग दे रहे हैं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो एक बैग लेके गए हैं तो वो हमारे पास 1 या 2 तरीके के बाद दोबारा हम उनको चेक करके ये इनका आटा है, इनको ही मिलेगा। बाकी अरेंजमेंट के हवाले से डीएसपी साहब मौजूद हैं, एसएचओ साहब यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पीसफुल तरीके से चल रहा है। नॉर्मल रूटीन से रश बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हमारे एसएचओ साहब बजाते खुद यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जो नफरी लगाई हुई है वो बिल्कुल मौजूद है। ट्रैफिक का स्टाफ भी मौजूद है यहाँ पे। तो जी बिल्कुल जी, हमारे साथ एसी साहब और डीएसपी साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि सीएम और पीएम साहब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे स्मूथली निज़ाम चलाया जा रहा है। जिनके यहाँ पे थैले 2 आए हैं उनको मुहैया किए गए हैं। जिनके कुछ रहते हैं वो यकूम के बाद। बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना आपका हमें अपडेट करने के लिए। पिपला में भी फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला बिला तातील जारी। सेंटर पर योमिया 3500 बैग आटा शहरियों को फराहम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम की ज़ेर निगरानी मुफ्त आटे की फराहमी जारी। पिपला मर्द व ख़वातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स भी कायम। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पिपला के आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी शहरियों को बिला तातुल आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। योमिया 3500 के लगभग आटे के फ्री बैग शहरियों के अंदर किए जा रहे हैं। सर, यहाँ पे हमने शहरियों से भी बात की है। शहरी बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं आटे के हुसूल को लेके। तो क्या इंतजामात है और किस तरह से आप ये मैनेज कर रहे हैं? सर, हमने इधर जो मेल साइड है उसके लिए 5 काउंटर बना दिए हैं और उनके ऊपर 5 हमारे स्कैनर मौजूद हैं जो कि फौरी तौर पे बंदों को स्कैन करके आगे चला रहे हैं। इसी तरीके से उनके लिए चेयर्स का इंतज़ाम कर दिया गया है और जो भी बंदा इंटर हो रहा है उसको आराम से चेयर पे बिठा के अपनी लाइनिंग में एडजस्ट करके उसको आगे आटा हम मुहैया कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमने फीमेल का पोर्शन बिल्कुल अलहदा कर दिया है और उसके अंदर भी हमने 5 स्टॉल लगा दिए हैं और 5 स्कैनर उसके ऊपर भी एडजस्ट कर दिए हैं जो फौरी तौर पर अमल दरामद करते हुए फौरी तौर पे बंदों को आटा अवेलेबल हो जाता है। मज़ीद बुज़ुर्गों के लिए हमने एक अलग काउंटर का क़याम कर दिया है। पानी का अरेंजमेंट और जितना भी हमारा स्टाफ जो अदर डिपार्टमेंट के हैं और जो रेवेन्यू है, जितना भी हमें मिले, हर बंदे को अपनी अपनी जगह पे डिप्यूट करके और कोशिश की है कि बिल्कुल हर बंदे को 5 मिनट के अंदर आटा अवेलेबल हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी बाहर गेट के ऊपर भी सारे लोगों से बातचीत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई रोक नहीं है, बंदे आ रहे हैं और अपना आटा लेके। बहुत शुक्रिया आसिफ खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का 1 हफ्ता मुकम्मल। ज़िला इंतज़ामिया का अहसन इक़दाम। दूसरा थैला लेने आए शहरियों के लिए एक की बजाय 2 थैले फराम करने का अमल शुरू। मर्द व ख़वातीन 10 किलो थैले के 2 थैले वसूल करने के बाद वापस लौटने लगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जो मुफ्त आटा है उसकी तकसीम जारी है। मैं इस वक्त अब्बासिया हाई स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर जो आटे का थैला है उसकी तकसीम जारी है। 10 किलो का आटे का थैला जो 1 हफ्ते बाद दिया जाना था उसकी आज तकसीम दोबारा से शुरू की गई है। जो पहले 1 हफ्ता कबल 1 थैला लेके गए थे, आज उनको दूसरा जो है थैला दिया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया है। जिनके 2 थैले रहते हैं उनको 2 थैले ही अब दिए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, कितना अच्छा ये स्टेप लिया गया है? पहले 1 थैला मिलता था, फिर अब दूसरा
दूसरा मिलना था, एक हफ्ते बाद तीसरा भी ऐसे मिलना था, तो अब ये एक दो जो थैले हैं वो इकट्ठे आपको दे रहे हैं, तो ये कितना अच्छा इकदाम है। ये इंतज़ामिया का एक खुश आइन है तरीक़ाकार जो है ना, इसमें खजल ख्वारी भी बहुत कम हो रही है। इसमें जो है ना मज़दूर लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, जिन्होंने 3-3 छुट्टियाँ करनी थी, अब वो उनकी 2 छुट्टियों में जो है उनको आटा मिल रहा है और खजल ख्वारी भी कम हो रही है। ये इंतज़ामिया का जो है ना बहुत अच्छा ही तरीक़ाकार है, बहुत अच्छा अमल है। ऐसे इंतज़ामिया का अच्छा तरीक़ाकार है, शहरियों का यही कहना है। और भी हमारे साथ मज़दूर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं, कितना अच्छा इकदाम है, कितनी देर में आटा मिल रहा है यहाँ पे लाइन में लग के? नहीं भी आटा थोड़ी देर बाद मिल जाता है, बहुत इंतजाम अच्छा चलता पे, 3 थैलियाँ 2 थैलियाँ मिल जाए, ऐसा सौखे हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। तो क्या पंजाब हुकूमत को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? पंजाब हुकूमत जैसा शुक्रिया अदा करने पे है, ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करने, गरीब आवाम वास्ते बहुत सौखे चले सारे वास्ते। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो शहरी हैं वो पंजाब हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। उनका यही कहना है कि जो इंतजामिया ने ये स्टेप लिया है कि जो थैले रह गए हैं वो इकट्ठे दिए जा रहे हैं, और जो पहले एक जो थैला दिया गया उसके बाद एक हफ्ते बाद दिया जाना था, लेकिन अब जो 2 थैले रहते हैं जिन शहरियों को, उनको यहाँ पर 2 थैले एक साथ ही दिए। पर जो सिस्टम है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, जो थैले हैं अपने वसूल करके वापस। बहुत शुक्रिया ताहिर जो ये आपका हमें अपडेट करने के लिए। लिया में माह सयाम में पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट का अहम इकदाम। मॉडल बाजार में मुफ्त आटे की फराहमी के साथ अशे खुरनोश की कीमतें भी कम कर दी गई। चीनी 10 रुपए फी किलो कम, जबकि घी 20 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मजीद जानते हैं जाहिर सरफराज से। बिल्कुल जी, माह शाम में शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के हवाले से पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से अहम इकदाम किया गया है। जहां पर मॉडल बाजार के अंदर जो है मुफ्त आटे की फराहमी का अमल जारी है, वहीं पर मॉडल बाजार के अंदर शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी के हवाले से भी इकदाम किए गए हैं। अगर बात की जाए तो इस बार माह रमज़ान बाजार नहीं लग सके, लेकिन उसके बावजूद मॉडल बाजार के अंदर जो है मुख्तलिफ अशिया उन पर सब्सिडी दी गई है, जिनमें चीनी जो है 10 रुपये फी किलो कम है, जबकि साथ साथ जो घी है उसकी कीमत भी 10 से 20 रुपए कम होने के साथ दीगर जो खुर्दनोश अशिया है उसके अंदर भी कमी लाई गई है, जिससे ना सिर्फ शहरियों को यहाँ पर रश लगा हुआ है, बल्कि शहरी जो है वो खरीदारी के अमल से भी गुजर रहे हैं और सस्ती अशिया की खरीदारी के अंदर खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद से बात करते हैं। भैया दसे सो इधर सस्ती अशिया मिल जाए बाजार तो किमें लगता पे? अल्हम्दुलिल्लाह असां मॉडल बाजार ले तो बहुत सैटिस्फाई हैं, असां को बहुत सारी चीज़ां सस्तियां मिलदी पैन, जितना भी रिलीफ साकू देंदे पैन असां उहदे च खुश हैं बिल्कुल। चीनी साकू रिलीफ नाल मिलदी पे, आटा भी साकू रिलीफ नाल मिलदा पे, असां मॉडल बाजार की सिक्योरिटी वगैरह तो भी सैटिस्फाई हैं, एम्प्लॉयमेंट भी सैटिस्फाई हैं, सारे दे सारे। ये दसो कि चीज़ें सस्ते मिलने पर बाजार तो कितना अच्छा लगता है कि रमज़ान बाजार कौनी रकम के बावजूद चीज़ें सस्ते मिल जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह असां सैटिस्फाई हैं। चीनी भी साकू सस्ती मिलदी पे, चाय भी सस्ती मिलदी पे, आटा भी साकू 650 रुपए का थैला मिलदा पे, बाद से आटा फ्री मिलदा रहा, हुण तो माह रमज़ान दे विच आटा फ्री मिलदा पे। तमाम जो शहरी हैं उनका यही बताना है कि वो मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जो ऑफर दी गई है शहरियों को, वो उससे ना सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उनकी जो माह रमज़ान के अंदर जो मुआशी मुश्किलात थी, जो महंगाई की वजह से उनको मुश्किलात पेश आ रही थी, उसके अंदर भी खासी कमी बाकी हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मॉडल बाजार जहाँ मुफ्त आटे की फराहमी का अमल जारी है, तो बहुत वहीं शुक्रिया जाहिर सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए। लिया के बाद रुख करते हैं भक्कर का। मुफ्त आटे की फराहमी का मिशन, डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का मुफ्त आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा। डीपीओ ने सिटी एरिया और सादिकाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया। रहीम यार खान डीपीओ ने आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डीसी मुजफ्फरगढ़ आगा जहीर अब्बास का खानगढ़ में कायम मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तनवीर मलिक भी हमरा। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर बुनियादी सहूलियात का लिया। आटा पॉइंट्स पर नज़्मो ज़ब्त हर सूरत कायम रखा जाए। डीसी मिल से ही मिलने वाले आटे पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुल्तान में इंतजामिया की नाहिली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बारिश को गुजरे 3 दिन गुजर गए, मगर सब्जी मंडी से पानी ना निकाला जा सका। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील। सब्जी मंडी में खड़े गंदे पानी पर शहरी सरापा एहतजाज। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की फल और सब्जी मंडी की बात करते चलें तो बारिश को हुए जो है वो 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मंडी की जो सूरत हाल है वो इस वक्त अबतर है। कूड़ा किरकिट के साथ साथ कीचड़ के बाइस जो यहाँ पर मौजूद दुकानदार हैं, आड़ती हैं, उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ नायब सदर मौजूद हैं। मंडी में कभी बारिश हो जाती है तो पोजीशन ऐसी हो जाती है जैसे कोई मंडी में बसता ही नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ। और अब आप देख रहे हो, आपने सर्वे किया, यहाँ का बहुत बुरा हाल है। मंडी में लोग पैदल नहीं चल सकते,
और मार्केट का अमला गायब है। कोई अमला यहाँ, एक ट्रैक्टर है, दूसरा ट्रैक्टर कोई लगाता नहीं है, हंगामी तौर पे सारा निज़ाम खराब है। कोई इंस्पेक्टर नहीं है मार्केट कमेटी का, तकरीबन आज 2 महीने हो गए इंस्पेक्टर मंडी में नहीं है। बहुत बुरा हाल है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब आदमियों को मुश्किलात का सामना है। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केट के अंदर जिस तरह आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्मेल है, बदबू है, बैठा नहीं जा रहा, जो ग्राहक हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। कितनी मुश्किलात का सामना? भाईजान बहुत प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, ना कोई सफाई है, ना कोई कायदा है, ना कानून है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। रोजेदार आ रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं, ठीक है ना। वही स्मेल वाली चीज वो ले, बीमारी का फैलाव का ज्यादा खतरा है। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, सारे खाने पीने के शेर हैं। मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से खासा मुश्किलात का सामना जहां आड़तियों को करना पड़ रहा है, वहीं ग्राहकों को भी। और उनका इस हवाले से ये कहना है कि सब्जी मंडी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए ताकि आम बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका हमें अपडेट करने के लिए। MWMC की नाहली मुल्तान के टिम्बर मार्केट विहारी रोड पर कचरे के ढेर, जा बजा गंदगी के ढेर से इलाके में ताफून, मच्छरों की भरमार से शहरी परेशान। शहरियों का इस बारे में मजीद क्या कहना है, जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त विहारी रोड पर, टिम्बर मार्केट के सामने ही है ये, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर मेन सड़क के ऊपर कचरे के ढेर जो है वो लगे पड़े हैं। इलाका मकीन जो है वो परेशान है, बिलखसूस जो ताजिर है वो काफी परेशान है। यहाँ पर खड़ा जो है वो नहीं हुआ जा रहा है। चाचा, गंदी बदबू ने बैठा नहीं जा रहा, जख्म सारे निकल रहे हैं। 2-3 दिनों के रोड के ऊपर गंद है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई रेड़े वाला बात ही नहीं कर रहा। सारे पता नहीं सोए पड़े हैं, सफाई करने नहीं आ रहे, सफाई करने को उठाने वाला कोई नहीं आ रहा। ऐसे हुकूमत का फायदा क्या कर, कहाँ भी ना रोड के ऊपर देखो कैसे गंद पड़ा है। सब लोग परेशान है, कोई काम भी नहीं होता, हर कोई सियासत के चक्करों में लगा हुआ है। इनका कचरा नहीं भरना चाहिए, इन सियासतदानों का सबका ट्रक भरना चाहिए है। इन्होंने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कहेंगे वेस्ट मैनेजमेंट आती नहीं है। गिरासी प्लाट था, गिरासी प्लाट का ये देख लो, तो कूड़ा फेंक फेंक के तरफ प्लाट ही खत्म कर दिया। ये काफी अरसा ही हो गया, यही हो रहा है। सड़क पर आने लग गए, अब सड़क पे बनाने लग गए। पहले ग्राउंड का इस तरह हाल खराब कर दिया इन्होंने, कहाँ मिट्टी फेंक रहे, कहाँ गंद फेंक रहे। आज भी खड़ा नहीं होता, ये बीमारी का हो रही है, बीमारी है नहीं, बीमारी है। इतने बड़े वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है वो कचरा सड़क के ऊपर आया पड़ा है, और शहरी जो है वो परेशान है। खास तौर पर जो ताजिर हजरात हैं जिन्होंने यहाँ पर काम करना है, कमर्शियल ये रोड है, मुतालबा ये किया जा रहा है कि यहाँ से ये जल्द से जल्द जो है वो उठवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर वाकई में खड़ा जो है वो नहीं हुआ जा रहा है, और लोग जो है वो परेशान है। किस तरह से वो पूरा दिन अपनी दुकान के सामने बैठते हैं, काम करते हैं, लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में सीवरेज की बोसीदा लाइनें शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गईं। सड़कों पर गड्ढे पड़ने का सिलसिला जारी। मानका किनाल रोड पर क्राउन फेलियर हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात में इजाफा, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं हाशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सीवरेज की बोसीदा लाइनों के बायस क्राउन फेलियर का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस टाइम हम मौजूद हैं मानका केनाल रोड पर। सीवरेज की बोसीदा लाइनों के बायस एक और क्राउन फेलियर जो है यहाँ पर हो चुका है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो क्राउन फेलियर गहरा भी है और काफ़ी बड़ा भी है, जिससे किसी भी वक्त कोई हादसा जो है रूनुमा हो सकता है। यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं इनसे पूछते हैं क्या करना चाहते थे। कल कलो का था सवेल नाल कोई आया है एक फेल करने वास्ते इंतजाम? कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। ट्रैफिक सारा नहीं गुजर दी, सारा सी ट्रैफिक गुजर दिया। कोई रात इतनी जाकर रेडी ढटी है, उनका सीमा भी चंगा वो बेच ब्याह प्याऊ कढ़े थे। क्या मुतालबा करे? यो बनाया वने या क्या है, इनको बड़ा मिट्टी छाट वने जब बढ़ावन। क्या मुतालबा करेंगे सर जी? हर वक्त पब्लिक आंदी है सही को जल्दी बढ़ाया वने ताकि कोई नुकसान ना थे, कोई जानी नुकसान ना दे, कोई मोटरसाइकिल वगैरह ना आवे, या मेहरबानी करके कोई जल्दी बढ़ाया वने। हाँ, एक रेड़ी रात वन पई है, इन तो मेहरबानी करके जल्द से जल्द को बढ़ाया वने। क्राउन फेलियर को फिल करने के हवाले से शहरियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस क्राउन फेलियर को फिल किया जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई माली नुकसान ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो, इससे बचने के लिए मुतालबा किया जा रहा है। कोई जानी नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया हाशिर इशफाक आपका हमें अपडेट करने के लिए।
इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। गुज़श्ता दिनों से होने वाली बारिशों से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहर की मेन शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। स्कूल जाने में तलबा को दुश्वारी का सामना। मजीद जानते हैं चौक सरवर से शहीद से हमारे नुमाइंदे चौधरी उमर से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस शहर भर की मेन शाहराहें, गलियां, मोहल्ले जो कि जोहड़ और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से जो है वो कोई भी खातिरखवाह जो है इकदाम नहीं किए। सफाई की सूरत हाल जो है वो भी अबतर नज़र आ रही है। शहरी जो है वो काफ़ी अज़ियत से दो चार नज़र आ रहे हैं। शहरियों को जो है वो घर जाने के लिए और बच्चों को स्कूल जाने के लिए, नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से जानते हैं शहरी मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते। ये कपड़े हमारे ऐसा ये हालत है, गंदा पानी गटरों का निकला हुआ है बाहर भी। ये बारिश का पानी है, बच्चे स्कूल से आते हैं, इनके लिए रास्ता नहीं है, रोड क्रॉस के लिए इतना पानी है। बस इंतज़ामिया से चाहिए कि ये कुछ तो पानी निकाल दें, हम लोग कुछ सुख का सांस है। जी बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय साढ़ा साई बारिश कोई नहीं है, डुबे न्याणे डुब जाते सारे कपड़े पलीत करके जाते घर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि इंतज़ामिया की जानब से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। मस्जिद में जाने के लिए जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई इकदाम नहीं किए गए। चौधरी उमर, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जियां जारी। ममनानत के बावजूद शहर में मुख्तलिफ जगहों पर खुले आम डब्बों पर खाने पीने की अशिया फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे माहर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से जो एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस की जो खिलाफ वर्जी हैं वो जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ जो चौकों चौराहों पर जो खाने पीने की खुलेआम जो चीज़ें हैं वो भी फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसके हवाले से बाकायदा तौर पर कानून साजी भी की गई, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद होता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी जानिब पकड़ धकड़ भी जारी है। इस हवाले से क्या कवानीन हैं, एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस कब बनाया गया, उसके कवानीन क्या हैं, सजाएँ जजाएँ? जनाब, एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस 1981 में बनाया गया था। उसके तहत जो बंदा रमज़ान शरीफ में रोज़ा न रखे और कहीं भी पब्लिक प्लेस पे खाए पिए तो उसको 5,000 रुपये फ़ाइन और 3 माह सज़ा दी जाती है। तो ये जगहें जो हैं जहाँ पे अलाउड है, वो जनरल बस स्टैंड, वहाँ पे मुसाफिर आते जाते खा पी सकते हैं, वो भी छुप के पर्दे के अंदर कनाते वगैरह लगा के होटलों पे, और हॉस्पिटल्स। और ये 2 जगह हैं जहाँ पे, या रेलवे स्टेशन कह लें, वहाँ पे आप एहतियात से छुप के यानी कि खा पी सकते हैं। और इसके अलावा पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी खुल के आप ना खा पी सकते हैं, ना कोई खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। इसका अखलाकी तौर पर क्या समझते हैं कि रमज़ान मुबारक का जो महीना जिसमें रोज़ेदार रोज़े की तलकीन है और उसके बावजूद ये खुले आम फ़रोख्त जारी है, क्या कहेंगे? अखलाकी तौर पे भी जो है बहैसियत मुसलमान हमें इस बात को जो है ना समझना चाहिए कि रोज़ा जो है ना बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप नहीं रख सकते तो कम से कम उसका एहतराम ज़रूर करें। हम देखते हैं कि चौकों चौराहों पर किसी भी जगह पर जो खुलेआम जो ठेले वाले और मुख्तलिफ जो अरशे खुर्दनोश जिसमें खा पी रहे होते हैं, बन रही होती हैं, खाने के होटल जो है वो खुले हैं, उस हवाले से बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। सलमान लोधी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ तैनात। जुल्फकार बून डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर तैनात कर दिए गए। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सलमान लोधी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिए गए हैं। जुल्फकार बून डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर तैनात कर दिए गए हैं। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में 80% कंप्यूटर चोरी के इंकशाफ। सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर चोरी होने पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त शहरी आजम भट्ट ने हाई कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में सेक्रेटरी स्कूल समेत दीगर्स को फरीक बनाया गया। स्कूल्स में 80% कंप्यूटर चोरी हो गए हैं। मौके कंप्यूटर चोरी होने की वजह से तलबा की कंप्यूटर्स की तालीम मुतासिर हो रही है। अदालत कंप्यूटर चोरी में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। अहम खबर दे रहे हैं आपको।
पंजाब के सरकारी स्कूल्स में 80% कंप्यूटर्स चोरी के इंकशाफ। सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर्स चोरी होने पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त शहरी आजम भट्ट ने हाई कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में सेक्रेटरी स्कूल समेत दीगर्स को फरीक बनाया गया। सरकारी स्कूल में 80% कंप्यूटर्स चोरी हो गए हैं। मौकिफ कंप्यूटर्स चोरी होने की वजह से तलबा की कंप्यूटर्स की तालीम मुतासिर हो रही है। अदालत कंप्यूटर चोरी में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब के सरकारी स्कूल में 80% कंप्यूटर चोरी के इंकशाफ। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर चोरी होने पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त शहरी आजम भट्ट ने हाई कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में सेक्रेटरी स्कूल समेत दीगर्स को फरीक बनाया गया। सरकारी स्कूल में 80% कंप्यूटर्स चोरी हो गए हैं। मौकिफ कंप्यूटर्स चोरी होने की वजह से तलबा की कंप्यूटर्स की तालीम मुतासिर हो रही है। अदालत कंप्यूटर चोरी में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में 80% कंप्यूटर चोरी के इंकशाफ। सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर चोरी होने पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक शहरी हैं जिनकी जानब से लाहौर हाई कोर्ट में जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर चोरी होने के इक़दाम के खिलाफ रजू किया गया है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने सेक्रेटरी स्कूल्स में दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ तैयार किया है कि अक्सर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर चोरी हो चुके हैं और इनके चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए और कंप्यूटर चोरी होने की वारदातों के बाद जो तलबा हैं उनका भी वो मुतासर हो रहे हैं और उनका तालीमी हर्ज हो रहा है। तो अदालत की ये इस्तदा की गई है कि अदालत इस हवाले से मौसर इक़दाम करने का हुक्म दे और जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स चोरी होने के वारदातें रोकने के लिए पुलिस को मौसर इक़दाम करने का हुक्म दिया और साथ ही तालीमी इदारों के जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। मलिक अशरफ, ये भी बताइएगा कंप्यूटर लैब में कोई कैमरा नहीं था जिसकी वजह से चोरों तक पहुंचा जाए? देखिए, इसमें जो सरकारी स्कूल हैं, अक्सर सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए और जो चोरी की वारदातें हो रही हैं उसमें ना सिर्फ दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है स्कूल का उसके टीचर्स और दीगर स्टाफ जो है वो भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। तमाम इसके लिए दरख्वास्तें दी गई हैं लेकिन कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। ना तो पुलिस ने इस हवाले से कोई मौसर इक़दाम उठाए हैं और ना ही महकमा तालीम की जानब से कंप्यूटर की चोरी को रोकने के लिए कोई मौसर इक़दाम किए गए हैं। तो यही इस्तदा की गई है कि जो स्कूल की ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए और कंप्यूटर चोरी रोकने के लिए भी मौसर इक़दाम करने का हुक्म दिया। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान से खबर दे रहे हैं आपको, पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेख साजिद सुहेल, शेख उस्मान, नईम अख्तर बलू और दीगर भी रहा। तमाम सेंट्रल जेल से बाकी 39 कारकुनान को भी रिहा कर दिया गया। डीसी की जानिब से तमाम कारकुनान की नजरबंदी अहकामात वापस ले लिए गए हैं।